वेलकम बैक गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविडेंस लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज डाइंग डिक्लेरेशन। द टॉपिक ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन हैज बीन लेड डाउन अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। और इस वीडियो में आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू द डाइंग डिक्लेरेशन, राइट? बट बिफोर I start the video, I want to make a request that please do you know subscribe to the channel and watch the complete video, because मैंने ये अपना नोट्स बनाया है 9 पेजेस का, एंड you will find everything related to dye integration, right? So do watch the complete video, and फिर भी अगर आपको कोई भी query हो ना तो you are most welcome to put that in into the comment box, right? So without further delay, let us start with the topic. Yeah, well, so we are studying dying declaration, guys, and it has been laid down in section 32 clause 1, ठीक है ना? Section 32 of the Indian Evidence Act talks about dying declaration. What is dying declaration? As the name suggests, a, a declaration, a statement that is made by a person while he is on deathbed. I mean, the person is dying, right? So such declarations, such statements would be considered as dying declaration, and such declaration are very relevant as an evidence in the court of law. So these are the statements of the dying person. So what is important here is that the person making the statement shall be dying, who voluntarily, ठीक है ना? अच्छा, वो वॉलंटरली तो होता होना ही चाहिए एट द से, यू नो, सेम टाइम द पर्सन शैल अल्टीमेटली मीट विद द डेथ, ठीक है ना? तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट यहाँ से क्या निकल के आता है कि द पर्सन मेकिंग सच स्टेटमेंट shall be on the deathbed, and ultimately that person shall meet with the death, मतलब उसकी डेथ हो जानी चाहिए, ठीक है ना? So there must be death, and that is the condition, that is the most important requirement of dying declaration. Then only it will become a dying declaration. Otherwise वो तो एक नॉर्मल स्टेटमेंट हो जाएगा ना, स्टेटमेंट मेड टू एनी पर्सन. So what does statement envisages here? It says that it means that it should reveal or relates to the cause of the death, ठीक है ना? The statement जो है ना वो it shall relate to the cause of the death, कि क्यों हुआ है. Suppose a person has been nabbed by a knife, ठीक है ना? तो उससे पूछा जाए तो he should say that yes, so and so has used the knife to kill me, ठीक है ना? तो इस तरीके का एक स्टेटमेंट होना चाहिए जो रिवील करना चाहिए द कॉज ऑफ डेथ और एनी अदर सर्कमस्टांसेस, ठीक है ना, ऑफ द ट्रांजेक्शंस विच रिजल्टेड इन डेथ. मतलब उस स्टेटमेंट से वो सारे सर्कमस्टांसेस, वो सारे ट्रांजेक्शंस भी रिवील हो जाएं जिससे कि अल्टीमेटली डेथ हो गया है, जो कि हम पकला नारायण स्वामी वाले केस में देखेंगे कि लेटर भेजा जाता है, उसके पास उसको बुलाया जाता है कॉन्स्पिरेसी करके, एंड फाइनली his body was chopped into pieces and it was found at a station in a trunk, ठीक है ना? So that later was admitted as a dying declaration, because though उस लेटर में डायरेक्टली ये मेंशन नहीं था, you know, it was not mentioned that I mean not the letter but the statement made to the wife by the deceased कि ये लेटर आया है मेरे पास, मैं जा रहा हूँ, so and so has called me, और पैसे लेने जा रहा हूँ मैं. So that becomes dying declaration, because that transaction altogether resulted into the death of the person. Moving on, of course, यहाँ पे, और such statement, such declaration would only be relevant when the cause of death of the deceased would be in question, ठीक है ना? ये फैक्ट एंड इशू होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाट वाज द कॉज ऑफ द डेथ. अगर उस फैक्ट एंड इशू से, उस क्वेश्चन से, उस क्वेश्चन का आंसर आपको डिक्लेरेशन में मिल जाता है, तो देन इट वुड बी relevant. So as I was talking about Pakla Narayan Swamy, so this is a very celebrated case of the British India itself, the Pakla Narayan Swamy versus Emperor, wherein एक लेटर था, जैसे मैंने बताया था, वो भेजा गया था डिजीज को कि यू शुड कम टू कलेक्ट योर मनी, डेप्ट,
ठीक है ना, डेप्थ था उसको कलेक्ट करने के लिए आप आ जाइए, ठीक है ना। तो डिजीज ने वो अपने वाइफ को बताया कि आई एम गोइंग टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द अक्यूज्ड, ठीक है ना। फर्दर होता क्या है, द डिजीज वाज किल्ड ऑफ कोर्स एंड हिज बॉडी वाज चॉप्ड इनटू पीसेस एंड इट वाज kept in a trunk at a station. I guess it was Puri station. I believe, if I remember it correctly. You may counter check. ठीक है ना। तो फिर बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया, ट्रंक वाले कहाँ से ट्रंक खरीदा गया ये सब पता करने के बाद फाइनली the wife was wife ने वो लेटर एडमिट किया, आई मीन प्लेस किया बिफोर द कोर्ट एंड द स्टेटमेंट मेड टू द वाइफ दैट आई एम गोइंग टू सो एंड सो by the deceased was considered to be a dying declaration. Why? It was of course contented कि भाई ये तो how can that statement कि I am going to so and so would relate to the death of the person. It was accepted. This contention was accepted but rejected on a ground that yes, though it was not directly connected with the it was not directly connected with the death of the person, but of course the statement made by the deceased to the wife was connected with the transactions which finally resulted into the death of the deceased, ठीक है ना। So this was all which was held in this particular case and you can go through this case, ठीक है ना। एक हमेशा क्वेश्चन आता है कि शुड द डिजीज एक्सपेक्ट द डेथ। तो आप देखिए, अगर हम पकला नारायण स्वामी में उसको डेथ की टाइम डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिट किया गया, स्टेटमेंट मेड टू द वाइफ, ठीक है ना, उस समय तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब ये होता है कि इंडिया में जो पर्सन है जो डाई कर गया है, जिसने डिक्लेरेशन दिया, वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए डेथ को। बट दैट रूल इज यस, आई मीन यस, द इंग्लैंड में रूल क्या है कि द पर्सन हु इज मेकिंग दैट द डिक्लेरेशन शैल एक्सपेक्ट द डेथ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पकला नारायण स्वामी इंग्लैंड का केस होता तो वहां पे वो डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे एडमिट नहीं होता, वो द स्टेटमेंट मेड टू द वाइफ, ठीक है ना, कि ये लेटर आया है, आई एम गोइंग टू कलेक्ट द डेट। तो समझ रहे हैं, तो दैट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ यूएसए, यूके, नॉट यूएसए सॉरी, यूके एंड इंडिया। तो जहां जहां पे भी आपको, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द कॉमन लॉ, और हमने इनहेरिट किया है कहाँ से, इंग्लैंड से। इंग्लैंड इज द पेरेंट, आई मीन ओरिजिनेटर ऑफ कॉमन लॉ, तो वहां से हमने इनहेरिट किया है। तो जहाँ जहाँ पे भी हम इंग्लैंड से डिफर करते हैं ना लॉ में, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, और आपको वो आपको स्पेसिफाई करना ही चाहिए एग्जाम में, ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर ये है कि शुड द डिजीज एक्सपेक्ट द डेथ, तो इंग्लैंड में यस ही शुड एंड इंडिया में नो, ठीक है ना। यहाँ पे एंड दैट हैज आल्सो बीन प्रोवाइडेड इन द प्रोविजो सेक्शन ऑफ प्रोविजो ऑफ द सेक्शन 32 क्लॉज 1। सो एसेंशियल कंडीशंस क्या बन के आ जाते हैं यहाँ पे कि द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट मस्ट डाई, ऑफ कोर्स द स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द कॉज ऑफ डेथ और सर्कमस्टांसेस देयर ऑफ, यस, ठीक है ना, एंड डेथ मस्ट बी इन क्वेश्चन। सो दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ द टाइम डिक्लेरेशन, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, कपिनैया वर्सेस आर, जहाँ पे आर है मतलब रेजिना होता है, ठीक है ना, आपको पता होगा रेजिना मतलब किंग एम्परर। रेजिना हम क्वीन के लिए यूज करते थे जब भी किंग था, वर्सेस एम्परर और क्वीन एम्परर के लिए हम रेजिना यूज करते थे, ठीक है ना। इंग्लैंड में जब भी किंग हुआ करते थे ब्रिटिश टाइम में, तो वहाँ पे अगर एक किंग होते वहाँ पे, तो इस समय लिखा रहता कपिनैया वर्सेस एम्परर, क्योंकि वहाँ पर उस समय क्वीन होंगी, इसलिए आर लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑल्सो पॉइंट टू बी नोटेड, यस। सो इन दिस केस क्या हो जाता है, इन दिस केस द डिजीज जो कि मर जाती है, शी वॉज रेप्ड, ठीक है ना, और वो ये सारी बातें अपने मदर इन लॉ को बताती है, ठीक है ना। और होता क्या है कि इंडियन सोसाइटी का आपको पता ही है, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि बहुत सारे ताने वाने मिलते हैं उसको, और उसके कारण शी आफ्टर फ्यू डेज शी जम्प्ड इनटू अ वेल एंड कमिटेड सुसाइड। क्वेश्चन कोर्ट के बिफोर आया कि कैन दैट स्टेटमेंट बी कंसिडर्ड एज डाइंग डिक्लेरेशन, तो कोर्ट ने कहा कि नहीं। अब यू मस्ट बी थिंकिंग कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, द गर्ल डाइड बिकॉज ऑफ द रेप committed upon her. But the point to be noted here is that when the case of dying, suicide was going on,
when the case of rape was, I mean, this case after the death of the deceased, I mean, जब कोर्ट में मामला जाता है तो वहां पे क्वेश्चन आता है कोर्ट के सामने कि व्हाट वाज द अल्टीमेट कॉज ऑफ द डेथ, वाज इट रेप? नो, इट वाज नॉट रेप, बट द स्टेटमेंट मेड टू द मदर इन लॉ वाज इन रिलेशन टू द रेप, इजंट इट? और वो जो द गर्ल died because of the jumping into the well and drowning into the well, isn't it? So कोर्ट ने कहा कि सी, कोर्ट ने क्या रीजनिंग दिया है यहाँ पे कि डेथ वाज नॉट कॉज्ड ड्यू टू द रेप कमिटेड, rather the disease died by jumping into well, ठीक है ना, due to the drowning, ठीक है, and that is how the statement would not be considered as dying declaration, ठीक है ना. Important variation, isn't it? Okay, you may comment upon this particular law in the comment box if you feel like, ठीक है, कि आपको कहीं भी लगता है कि ये लॉ लेट डाउन अच्छे से नहीं हुआ है तो यू मे सर्टेनली कमेंट. प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट क्या है इसका? देखिए, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्ट क्या है कि ये तो एक हियरसे एविडेंस हुआ ना, एंड हियरसे एविडेंस बाय रूल इज नॉट एडमिसिबल, ठीक है ना. एक्सेप्शन टू द हियरसे एविडेंस होता है डाइंग डिक्लेरेशन, ठीक है ना. हियरसे एविडेंस एज अ रूल इज नॉट एडमिसिबल इन इंग्लैंड, ठीक है ना. और इंडिया में तो हम हियरसे एविडेंस नाम का कोई है ही नहीं, मतलब हमारा एक स्टैट्यूट है, इंग्लैंड में कॉमन लॉ है, कन्वेंशंस हैं, इसलिए वहाँ पे प्रिंसिपल्स अलग हैं, ठीक है ना. हमारे यहाँ पे स्टैट्यूट है जो a fact shall be relevant under the evidence law, then only it will be admissible. किसी ना किसी स्टैट्यूट में फॉल करना चाहिए, then only it will be admissible in the court. लेकिन वहाँ पे क्योंकि इंग्लैंड में कन्वेंशनल कन्वेंशंस हैं, कॉमन लॉ है, तो वहाँ पे हियरसे नाम का चलता है. तो हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल, बट एक्सेप्शन टू हियरसे एडमिसिबल होता है, जिसमें से एक होता है डाइंग डिक्लेरेशन. तो उसके पीछे कारण यह है कि विटनेस, victim is a witness in itself, of course victim is a witness in itself. और हम इंडियन एविडेंस एक्ट में भी देख लेंगे कि जो ऑफ कोर्स विक्टिम ने देखा हुआ है, विक्टिम इज द आई विटनेस ऑफ द सिचुएशन, बट बिकॉज शी डाइड, ठीक है ना, बिकॉज एंड बिफोर डाइंग शी conveyed that incident to somebody, तो वो तो थर्ड पर्सन हो गया, तो दैट वुड बी कंसिडर्ड एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. बट यस, उसकी टेस्टिमनी जो है ना, दैट हैज टू बी सब्जेक्ट टू कोरोबोरेशन टू मेक इट टू बी टू कंसिडर टू फॉर द कोर्ट टू सर्टिफाई इटसेल्फ दैट इट वाज मेड, द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. कोरोबोरेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना. यहाँ पे victim is the only witness who died after making such a statement, and that's why the hearsay evidence would be relevant. Hearsay evidence, such evidence is hearsay evidence as we discussed, and hearsay evidence is not no evidence, but dying declaration is an exception to hearsay evidence in England. That is what we discussed, ठीक है ना. Hearsay evidence is no evidence in England, but फिर भी as an exception dying declaration is एडमिसिबल देयर. और यहाँ पे इंडिया में तो भाई उसका एक प्रोविजन है ना, नेवर से दैट हियरसे एविडेंस इज एन एक्सेप्शन इन इंडिया. नहीं नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग स्टेटमेंट. आपको ये कहना होगा कि इट इज एडमिसिबल बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 32 क्लॉज 1, ठीक है, नॉट एज एन एक्सेप्शन टू हियरसे. आर यू गेटिंग इट राइट? सो इसके पीछे दिस एक्सेप्शन इज बेस्ड अपॉन द नेसेसिटी प्रिंसिपल एंड सोलेमिनिटी ऑफ द ओकेजन, ठीक है. नेसेसिटी प्रिंसिपल मतलब अब कोई विटनेस है ही नहीं ना, तो उसने थर्ड पर्सन को किया है, तो उसको नेसेसिटी, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन एंड वी कैन नॉट हेल्प आउट. और इसका क्या कहा जाता है यहाँ पे, फिप्सन है, नॉट गिब्सन. फिप्सन सेज कि नो बडी वॉन्ट टू गो टू हिज मेकर विद अ lie in his mouth. ये एक प्रिजम्पशन है which might not stand true in today's world, but yes, that is how it is, right? Now guys, next thing that we have to understand is dying declaration. Of course मैंने जैसा बताया कि not admitted in the court in India, it is not admitted in the court as an exception to hearsay, but because of section 32 clause 1, ठीक है ना.
अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग का फॉर्म क्या होगा, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग का फॉर्म क्या होगा, तो इट कैन बी रिटन और ओरल, कैन ऑल्सो बी पार्शियली रिटन और पार्शियली ओरल, ठीक है ना। क्योंकि वर्ड जो यूज किया गया ना, वर्बल यूज किया गया। अगर आप देखें सेक्शन 32 में स्टार्टिंग में ही वर्बल यूज किया गया है, इसलिए जरूरी है कि वो ओरल ही हो। वर्बल वर्बल में देखिए ओरल भी हो सकता है, रिटन और वर्बल यूज किया गया है। तो वर्बल में आपका ओरल भी आ जाएगा और साइन साइन के तरीके से भी आ जाएगा। तो फर्दर वही हम डिस्कस करने वाले हैं। आर वर्सेस अब्दुल्ला एक केस था, इसमें डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आंसर एंड द आंसर इज गिवन बाय नोडिंग, यू नो, ऐसे ऐसे सर हिला के। एक मतलब हुआ क्या था ना, द डिजीज यहाँ पे उसका थ्रोट वाज कट, ठीक है ना। एंड उससे पूछा गया कि हु हैज किल्ड यू, आई मीन हु डिड दिस। तो शी जस्ट ऐसे उसने इशारा किया। तो आई मीन द person with a beard have killed me, that was, तो she मतलब people around, all of them were person with beard, ठीक है ना। तो पूछा गया कि इज दैट द फादर इन लॉ, शी सेड नो। इज दैट द ब्रदर इन लॉ, शी सेड नो। इज दैट द हस्बैंड, शी सेड यस। तो यहाँ से नोडिंग करके एंड दैट वाज कंसिडर्ड, ठीक है ना। उसी तरीके से चंद्रशेखरन शेखर वाले केस में भी इसी तरीके से कहा गया था कि साइन एंड जस्टिस से इट मे बी रिकॉर्डेड बिकॉज वर्ड यूज्ड इज वर्बल, ठीक है ना, एंड नॉट ओनली ओरल। तो रीजनिंग यही है कि सेक्शन 2 में वर्बल यूज किया गया है एंड नॉट ओरल, ठीक है ना। एंड वर्बल इंक्लूड्स ओरल, साइन, एक्सेट्रा। नाउ फर्दर such declaration can be made to police, of course, made to police as well, and it would be relevant. Why? Because 162 की अगर आप क्लॉज 2 में देखेंगे तो वहाँ पे एक्सेप्शन दिया है ना कि 32 क्लॉज 1 में और 27 एविडेंस एक्ट में जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा दैट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय 162, इजंट इट। सो वहाँ से ऑफकोर्स ये रिकॉर्ड हो जाएगा। बट एक कॉशन है, कॉशन ये है कि जिस, मान लो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो भी ऑफिसर रिकॉर्ड कर रहा है उसने टाइम डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर रहा है, तो फर्दर कॉशन ये लिया गया है कि उसको अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं बनाओ आप, ठीक है ना। बिकॉज नाउ and the reason is that a statement made to a police officer would not be allowed to be proved in the court of law also, isn't it? तो वो हो सकता है कि वो इंटरेस्ट से काम करने लगे। तो एक केस था बालक राम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, उसमें कहा गया इफ एन आईओ is recording the dying declaration, then such IO shall not investigate the case further, and therefore the dying declaration recorded would not, because not therefore यहाँ पे because the dying declaration would not be of the same value उसके बाद, ठीक है ना। So that is very important observation that has been made, क्योंकि statement recorded by the police is untrustworthy by the court। इसलिए आप देख लीजिए 161 में भी रिकॉर्ड कर लो आप, 162 से वो बार हो जाता है, साइन नहीं करवाएंगे आप। 25 एविडेंस एक्ट, 26 एविडेंस एक्ट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं जो बार करती हैं इसको, क्योंकि इट हैज़ बीन ऑपरेशन रैशनल जो 25 और 26 दिया गया है कि इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द irrelevancy of the evidence of the statement, but it is because of the untrustworthiness of such statement or confession, because the police uses coercive measures to extract confession out of the person making it. So that is how. All right. Moving on. Sarad Bardhichand, ठीक है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें क्या होता है कि डिजीज जो थी ना, शी वॉज इन हैबिट ऑफ राइटिंग लेटर टू हर पेरेंट्स एंड वुड कंप्लेन अबाउट द क्रुएलिटी इन हर इन लॉज हाउस, ठीक है ना। ससुराल में उस पर क्रुएलिटी हो रही थी। सो such letter was considered to be a dying declaration in the case of a dowry death. So this is again letter के फॉर्म में इसको रिलेट किया गया, ठीक है ना, उसको कंसिडर कर लिया गया that letter. Conviction, dying declaration as sole basis, yes, it can be a sole basis if court believe it to be true.
और ट्रूथनेस कैसे पता करेगा? क्रॉस एग्जामिनेशन से। ऑफ कोर्स क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो ट्रूथनेस पता चल जाएगा उसका, ठीक है ना। तो डाइंग डिक्लेरेशन इज एन सब्सटेंसिव एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड, आपको ध्यान में रखना। और क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड और केसेस है आसाम, स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस मुसीफ माफिजुद्दीन अहमद, और उसके बाद मुन्नू राज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये क्रॉस एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, मतलब ट्रूथनेस कैसे पता किया जाएगा? क्रॉस एग्जामिनेशन से। एक और क्वेश्चन आता है कि इज डाइंग डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड टू बी कोरोबोरेटेड? तो यहाँ पे एक केस है हरिवंश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि कोरोबोरेशन इन द केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन इज नीदर द रूल ऑफ लॉ नॉर द रूल ऑफ प्रूडेंस, एंड कोरोबोरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ कोर्ट बिलीव्स इट टू बी ट्रू, ठीक है ना। अब क्रॉस एग्जामिनेशन से पता चल जाता है कि ये सही है, तो कोरोबोरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इफ द डिक्लेरेंट सर्वाइव्स? अब वो सर्वाइव कर जाती है डिक्लेरेंट, तो क्या होगा? तो उस केस में वो डाइंग डिक्लेरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि द एसेंशियल दैट इज द डेथ मस्ट बी द अल्टीमेट सिचुएशन हैज नॉट फुलफिल्ड, तो वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा, तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट हो जाएगा, एक स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड दैट स्टेटमेंट would not be now a substantive piece of evidence, and if this statement is made to if this statement is made to the police officer, then it can only be used, and that would ultimately become a statement under 161 and be used as for corroboration under 162. Are you getting it? समझिए, ट्रांजेक्शन को समझिए। अगर ये डिक्लेरेंट जो है वो सर्वाइव कर जाता है, अब रिकॉर्ड करने वाला पुलिस ऑफिसर है, तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा 161 में, और 162 कहता है कि इसके इस तरीके के स्टेटमेंट को कोऑर्डिनेट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? 162 के अगर ये मजिस्ट्रेट यूज करता है, ठीक है ना, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, that statement would become a statement under 164, and that can be used for corroboration as well as contradiction that has been laid down, ठीक है ना, in 162. if कोई अदर पर्सन उसको यूज करता है, अदर पर्सन उसको करता है, मतलब रिकॉर्ड करता है, तो देन इट विल बिकम ए another evidence by an independent witness, ठीक है ना, and that would again be corroborated and coordinated, corroborated and contradicted to make it admissible. It becomes a corroborative evidence, जो हमने बताया। और corroboration का कैसे होता है? 177 से 157 से। contradiction के लिए भी यूज किया जा सकता है 145 के तहत। contradiction can only be, अच्छा, contradiction हमेशा तभी हो सकता है जब वो जो स्टेटमेंट जो है ना वो रिटन में है, ये ध्यान रखिएगा। कॉन्ट्रडिक्शन किसी भी स्टेटमेंट का तभी होगा जब वो स्टेटमेंट रिटन में होगा। ऑलराइट, एक केस है मकसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ द सर्वाइविंग डिक्लेरेंट वुड बी यूज्ड फॉर कॉन्ट्रडिक्शन एंड कोरोबोरेशन, ठीक है, वही सारी बातें जो हमने अभी बात करी। इस एक नोट है कि इफ देयर आर मोर देन वन डाइंग डिक्लेरेशन देन द फर्स्ट इन टाइम शैल बी कंसीडर्ड। पहली बार जिसको दिया गया है दैट शुड बी कंसीडर्ड, बिकॉज वो सबसे ट्रूथफुल है, क्योंकि बाद में अगर सर्वाइव कर रहा है डिक्लेरेंट, पहली बार कर दिया, फिर भी वो ट्रीटमेंट उसका चल रहा है, सर्वाइव हो रहा है, तो फिर से उसने किया, लगा कि भाई कंडीशन खराब हो रही है, तो फिर से उसको, तो हो सकता है कि उस समय उसकी पैरोटिंग हो गई हो, ठीक है ना, पैरोटिंग हो गई हो, इसलिए उसको नहीं माना है। तो पहली बार जो यूज किया गया है फर्स्ट इन द टाइम, दैट शैल बी कंसीडर्ड। दुर्गा प्रसाद में कहा गया था कि सेकंड भी कंसीडर किया जा सकता है कि अगर पहले वाले से वो डिफरेंट ना हो और उसको कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, ठीक है ना, दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट में कहा गया था। लेकिन अगर बहुत सारे स्टेट डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुए हैं, बहुत सारे डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड हुए हैं, 4, 5, 10, और उसमें से अगर जो भी मजिस्ट्रेट को दिया गया है, और मजिस्ट्रेट का हमेशा एक फॉर्मेट होता है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर मजिस्ट्रेट को दिया गया डिक्लेरेशन वुड बी रेलेवेंट अमंग ऑल, ठीक है ना, वुड बी रेलेवेंट अमंग ऑल, ठीक है। एक और बात है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन डिक्लेरेंट दे रहा है, तो
उस समय उसका स्टेट ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस वुड बिकम रेलिवेंट, ठीक है ना। और ये रिलेट कहाँ से कर लीजिए आप, कि दूसरी बार दे रहा है, तीसरी बार दे रहा है, तो हो सकता है उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाए पैरेटिंग के कारण, समझ रहे हैं आप। सो इसलिए नाउ pertinent question that comes is how the Dang Declaration law differs from differs between India and England, ठीक है ना। तो देखिए, इंडिया में एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। वो डेथ एक्सपेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है डजेंट मैटर, डेथ अगर डिक्लेरेशन हुआ है, डेथ हो गया तो इट विल बी। इंग्लैंड में क्रिमिनल केसेस में होता है, और दैट टू इन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के केसेस में, आप समझ रहे हैं। और कहीं सिविल केसेस में तो होगा नहीं, और दूसरे भी क्रिमिनल केसेस में नहीं होगा, सॉरी इंग्लैंड में। इंडिया में सिविल एज वेल क्रिमिनल केसेस में होता है, ठीक है ना। क्रिमिनल सिविल केस का सक्सेशन एक्ट में हो जाता है कि अगर प्रॉपर्टी के लिए किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अगर उसने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया तो वो ही विल बिकम डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द इनहेरिटेंस। अच्छा, एक केस है, एंड दिस हैज बीन, यानी डिफरेंस जो है ना, ये सिविल और क्रिमिनल वाला, इट हैज बीन लेड डाउन इन विनायक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, वेयरइन इट वाज सेड दैट इट इज admissible in civil and criminal cases, both unlike only in criminal cases in UK। इंडिया में ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में यूज होता है। इंग्लैंड में इट इज एन एक्सेप्शन टू hearsay, और इंडिया में इट हैज अ स्पेसिफिक प्रोविजन दैट इज 32(1), एंड इंग्लैंड में इट हैज कम थ्रू द प्रेसिडेंट्स, ऑफ कोर्स कॉमन लॉ है तो, और यहाँ पे वी हैव स्पेसिफिक statute that is Indian Evidence Act। So this is how we came to the end of this video, and guys, this was very short and crisp, but we have covered almost everything that would pertain to the topic of time declaration. But still, if you have any doubt, feel free to comment below, and we'll continue this series, and we'll, I mean, cover almost all the topics which is important for the exam from all the subjects. धीरे धीरे हम सब कर लेंगे, right? Hope you like this video. Please do subscribe, and do share this video with your friends. uh, that was all from my side. Great day, have a nice day, thank you, take care.